Hi everyone, welcome to the Journey Within with me, Shobha Rana. You can see a big smile on my face, and it is there for a reason. My today's guest, who is constantly distracting me even right now, is the reason for this big smile. He is somebody whose journey, of course, has been truly inspirational. Started from Chandigarh, came to Delhi for a quick bit, and then made it big in Bombay. Seen on multiple television shows and hosting events across the globe, an actor par excellence. And more than that, he's an incredible human being. When I connected to him the most was during the COVID times. He did some really, really amazing work to help people all around. And the best thing is that he's not somebody who will ever talk about it. And that's why I'm talking about it. So let's try to navigate through his journey and find out how he is dealing with things in his inner world. As you know, the show talks about two worlds that we all live in at all times. One is the outer world, where we are a certain name, certain personality, certain profession, certain financial status, and whatever it is. And that could be different for two people and everyone, right? But we also have an inner world where we feel things, and everyone in this world feels emotions in sort of a, if not same but similar way. The way I feel love, fear, anxiety, happiness, joy is same as you do. Now, it's a different thing that it could be coming to me from different or for different reasons, for different resources, whatever it is. But the way it hits me inside of me and the way it triggers my hormones, it's all the same. So we're trying to just figure out that resemblance in each other's journeys and stories, and how we can pick up from there and probably have some learnings and some insights from someone else's journey. So, without any further ado, I'm going to welcome him now. Please welcome with me Gunjan Utreja. I thought this was an interview and a podcast, not a monologue. It Like meant you a just full. went on and on and on and on and on See, and I'm. on and on, right? See, haters would say that she's not. I mean, she went on and on, but the lovers would say that she's a good host. Yes, I agree. First, So, I'm very happy to see you. Secondly, I am equally happy that you're doing this because the fact is that I remember we having this conversation oh, over और 2 hours, 3 hours of या conversation दो in दो तीन the घंटे की night. या और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई भी व्यक्ति कोई सपना देख रहा होता है और वो सपना साकार हो रहा होता है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा वो बाद में देखेंगे इट्स फॉर द व्यूअर्स एंड इट्स फॉर द ऑलमाइटी टू टेक यू इन दैट डायरेक्शन बट द फैक्ट दैट यू स्टार्टेड इट द फैक्ट दैट वी आर सिटिंग हियर एंड इट्स हैपनिंग I think that's a great achievement. So, how have you been, first of all? Great, And really great. In great. very awesome space. Couldn't have been in much better space. God has been really kind. And Yeah. I'm not saying it just for the heck of it. I'm in a very good space. I know that. And a reason for that is also that you've just returned from your trip to Mount Abu, हाँ which is the house of Brahma Kumaris. इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी शांति. अभी आप पूरे 4 5 6 दिन, पता नहीं, एक हफ्ता शायद बिता चार के दिन आओ. था मैं वहाँ पे. 4 दिन वहां बिता के आओ. तो कैसा था एक्सपीरियंस? It was beautiful. It was surreal. Uh, Everybody was saying अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. And I told them कि यहाँ क्या कैसा लग रहा है ये मैं नहीं बता सकता बट एक चीज़ की गारंटी है जब मैं वापस जाऊँगा then I'll start missing this place because it was that beautiful that the and जो दिमाग है ना वो बहुत कमीनी सी चीज़ होती है. The moment you get it then it just becomes used to it. तो जब मैं गया 10 मिनट आधा घंटा तो बहुत ही ऐसा लगा कि यार ये तो यूटोपियन वर्ल्ड है इतना खूबसूरत इतना शांत द एनर्जी हिट्स यू एंड टेक्स यू टू अनदर प्लेस you get elevated the thoughts and the vibrations inside your body changes, right? But after 30 minutes it starts to feel home. अब हर रोज मुझसे पूछ रहे अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है बट नाउ एवर सिंस आई हैव कम बैक आई एम लाइक बॉस कुछ छूट गया कुछ पीछे छूट गया बट इट ऑल्सो इज जो सिस्टर शिवानी भी बोलती हैं जो ब्रह्म कुमारी इसकी एक फिलॉसफी भी है कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि कुछ छूट गया आप जब अपने वातावरण में वापस जाएं आप बेसिकली यहाँ से वो लेके जाएं सो दैट यू कैन क्रिएट द सेम वर्ल्ड विद इन योर वर्ल्ड सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट. You're creating that energy around I'm not here back creating. home. I'm not creating. I was just fortunate enough to be in that environment, and it has just
flown with It me. has come with you. Yeah, yeah. I mean, a part of wherever you go, I think you absorb it Yeah. and it just stays with you and it goes with you wherever you go. Yeah. So that's there for sure. Yeah. Gunjan, you have lived into a very fancy, glittery, glamorous world of Hmm. events and entertainment, television, and all of that, right? And you started your career about nearly, what, 20 years ago? 18 years ago professionally. Nearly Yeah. 2 decades, right? Yeah. So you've been, and you've seen the best of this world as well, Yeah. and you've seen the struggling days as well. Yeah. What are the parallels that you draw? What was Gunjan back then? What is he now? How do you evolve as a person I think over this people period? would be in a much better position to tell के कितना बदल गया है, कितना सेम है. मुझे लगता है मैं नहीं बदला. I don't think so. I've changed even a bit in terms of I've become more wise. बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि अच्छा क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. उस चीज़ों में बहुत बेहतर हो गया है. बट इन टर्म्स ऑफ माई हार्ट आई थिंक आई एम स्टिल द सेम चंडीगढ़ बॉय. आई मीट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. I, in fact, this is an interesting story. One of my closest friends stay in Sydney. I was meeting him after 20 years. 2 years ago, I went to Sydney and I was meeting him after 20 years. So he sent me a message on Facebook कि bro तू Sydney आ रहा है तो मिलेंगे. And I'm like yeah. So he came to meet me and we met as if भाई कल मिले थे. तो मैं उसकी गाड़ी में बैठा और हम 1 घंटा ड्राइव पे गए. His wife was also there, sitting in the back seat, and after an hour of conversation, it's me and him talking. तो उसकी वाइफ ने कुछ नहीं बोला. 1 घंटे बाद उसकी बीवी बोली, she's like, I'm just amazed because मैंने इनको बोला था कि आप उसको मैसेज मत करो, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है, वो जवाब भी नहीं देगा. जवाब भी नहीं तो तुमको अपनी बेइज्जती क्यों करानी है? And now that you're behaving like as if you know you have hung out with him yesterday, I'm surprised and I'm amazed. And I was telling her, I said, यार मैंने इसके स्कूटर पे स्कूटर सीखा है, तो मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ इस इंसान को? Like life has taken us to different continents and in different directions, which is okay, but our hearts will always be connected. My heart will always be connected with people I have had any kind of relationship with. And जिनके साथ अच्छा रहा है उनको तो आप कभी भी नहीं भूल सकते यार, कभी भी नहीं भूल सकते. So I don't think so I've changed, but maybe हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगा अरे हट तुम बदल गए हो. तो मैं नहीं पता तुम बदल गए हो. मुझे नहीं पता. आई हैव नॉट सीन यू सिंस द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, बट जितने टाइम से मैं आपको देख रही हूँ, जान रही हूँ, 5 7 8 सालों से, आई थिंक यू आर द सेम पर्सन हु हैज जस्ट सच अ प्योर हार्ट. एंड आई मस्ट मेंशन इट अगेन, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डिड इन कोविड, गुंजन, द वे यू ब्रॉट ऑल ऑफ अस इन. और हम लोग शायद साथ में इसीलिए आए थे बिकॉज वी हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू. और हमने ग्रुप्स बनाए और काम किया और न जाने कितने लोगों की मदद की. I give all the credit to you for forming that. Yeah, मेरा है नहीं. मैं individually. sorry, I'm sorry I'm interrupting you, but I'm also saying we all just become either a जरिया कि यार कुछ हो जाता है and then we become the face of it. Exactly. तो मेरे लिए वो जरिया आप थे कि हाँ, तो मेरे लिए you भी कोई और formed था. it and you made it like an organized effort. Effort तो मैं individually भी कर रही थी और सब लोग ही कर रहे थे अपने अपने पेजेस के थ्रू जो भी, बट उसको कम्युनिटी बना के उस एफर्ट का एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट करना, आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी टॉक्ड यार अबाउट. मैं ना इन चीज़ों को क्रेडिट मतलब so I am and I'm not saying it just you know right we've I had know, so of many course, of course. मुझे कुछ और लगता है. मैं बहुत बार ना अपने दोस्तों के साथ भी बैठा होता हूँ और मैं फैमिली में भी बैठा होता हूँ. कभी कभी मुझे कोई थॉट आता है and that thought is beyond me कि यार oh this thought has come to me and let's do something and it's not for an individual you know goal कि यार शायद मुझे ये मिल रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि यार मेरे को लगता है कि यार मैं एक जरिया बन रहा हूँ कुछ करने का, तो उसमें अपनी एनर्जी डाल दो. एंड कोविड was one of those things where I realized that I think I was fortunate that I was in a privileged category where I was healthy, I had some bit of influence, I had some bit of money, where I could pull certain strings and do certain things for other people. That's all. But वो सब आया कहाँ से? वो भी तो किसी और ने दिया ना मेरे को. तो it just God chose me and then chose you, blah 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 blah, and then we were able to add some value to other people. That's all. Yeah. So you use a lot of your energy in this positive direction to add value and bring value. So what are the things that you don't waste your energy on? भैया बहुत सारी चीजें हैं. किन चीजों से कट ऑफ करते हो बिल्कुल? मैं गॉसिप नहीं करता. हाँ, नहीं करते हो. मैं गॉसिप नहीं करता. मेरे बहुत दोस्त सुनते हो? नहीं मेरे you know how I am. You know how I am, right? मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत गुस्सा होते हैं मेरे से कि यार इसके घर पे जाओ चाय पे ये
हर बार जब देखो यार बिजनेस क्रिएशन की बातें, आइडिएशन की बातें, कि यार ये क्रिएट कर देते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं, ये मुझसे भी करो ऐसी बातें प्लीज. Hello, when You should call me. no, no, when you called me for this thing, what the whole conversation, you said, I need 30 minutes of yours. I said, yeah, I only called 3 you. hours. हाँ, And- you and- called me. Right? I said, Exactly. yeah, done है. हाँ. And it went on for 3 hours and I was into कि actionable काम करते हैं. So after understanding what you wanted to do, I said, ये कर सकते हैं. This is what my experience is. तो मेरे बहुत दोस्त मुझसे बहुत खींचते हैं कि यार भाई कभी तो गॉसिप कर ले, कभी तो गॉसिप कर ले. I think it's waste of energy. Talking about other people is not something which excites me. I love to talk about other people. I love to learn from other people's experiences, but I don't wish to bring anybody down. I don't like to do it. You genuinely don't wish bad for anyone, or you consciously नहीं, मेरे को सुनना भी नहीं है. तुम्हारी किसी से नहीं बन रही, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बता दो, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है, थोड़ा मन हल्का हो गया 1-2 मिनट, वो उतना हाँ, बस ओके उतना है. उसके ऊपर मेरे को नहीं डील करना, मेरे को नहीं करना. थैंक यू वेरी मच. But have you always been this person, or you have evolved with time? आई थिंक आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस, बट वो बहुत कम मात्रा में होता था, अब थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया. बट आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट. आई वॉज ऑलवेज. So have you become this spiritual person now in the last few years? No, of course. Spiritually, I've changed a lot in the past 6. Has it contributed to you changing as a person who is now Maybe. more focused in certain directions and is completely cut off from what you think of as nonsense? So I was always focused as to what I wanted in my life, and I always wanted to be a host. I always wanted to be an actor. There's nothing else I wanted to be. I just don't know anything else. I have entrepreneurial skills. I run a business. In fact, I run 3 businesses. I'm hands-on with all of them. You saw. I just wonder how you pull it off. You Right. were here for 15 minutes before the Yeah, show we yeah. started recording, and you were Yeah. on calls constantly. yeah. So I get that. So all of that has been there, but वो सब चीज़ें हैं, but मैं बड़ा फोकस रहा हूँ कि मुझे करना क्या है. But 18, 20 years ago, did you know that hosting as a profession, legit profession existed? Because मुझे तो नहीं मालूम था, and I started 14, 15 years ago. And तो मैं 2 चीज़ें, क्योंकि वो आपने जो पूछा, जो स्पिरिचुअल वाली जर्नी है वो मैं आपको जवाब देता हूँ. इसके बाद तो 18 बहुत साल, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं शो देखता था, रोशन अब्बास सर का आता था, मास्टर कार्ड फैमिली फॉर्च्यून, और उससे किस भी पे आता था वो? स्टार पे आता था शायद, या जी पे हम आता था. गरीब बच्चे थे ना, हमारी लाइफ में वो था ही नहीं था, किस टेलीविजन. जी पे आता था या स्टार पे आता था, मैंने मुझे नहीं पता. देखा, मैंने नहीं देखा. उससे पहले जी पे एक शो आता था, पब्लिक डिमांड, तो मैंने वो देखा. चैनल वी पे आता था दिस होल गौरव कपूर यूज्ड टू होस्ट दिस शो जहाँ पे चार्ट बस्टर्स दिखाए जाते हैं. MTV सेलेक्ट आता था, निखिल चन्नप्पा यूज्ड टू होस्ट इट. साइरस ब्रोचा यूज्ड टू होस्ट MTV बकरा. That I know about. Right, Movers and Shakers आता था. That I know about. Right? Yes. So I've grown up in that era. But 2 people who've influenced me the most was Roshan Abbas and Shekhar Suman. And I'm like, यार मेरे को ये करना है. Incredible Nobody human knew beings. how to get into television. I was in Chandigarh ना, मतलब अभी स्कूल कॉलेज फिगर आउट कर So for you hosting मतलब television? yeah. क्योंकि उसी स्क्रीन पे हमने Yeah, देखा that's था. all. लाइव इवेंट्स और ये सब कि तो मेरे पता को ही ये नहीं करना होता है, कि था. मेरे को ये करना है. लाइक टुडे यू रीड अ न्यूज़पेपर, यू थिंक कि अपने आप बनता है. यू डोंट नो मिलियंस ऑफ पीपल हैव are working behind the scenes to create that newspaper, right? It's a big industry. या न्यूज़ आप देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, you don't know how to get into it, right? आज तो फिर मैं उस समय नहीं था. And just like everybody else, आप क्या कर रहे हो? अच्छा यार तू MCA कर रहा है, चल मैं भी MCA करूँगा. तू क्या कर रहा है? MBA कर रहा है, चल मैं भी MBA करूँगा. So again, all of this. And one fine day I met a man called Harsh Vij, the man who changed my life. He was my teacher, my mentor, where through some experiences we realized कि boss, my life journey is in entertainment. I'm meant to entertain people, and this is what excites me the most. So at that point of time, I got selected in one of the most premium-most B school, and I left that and I came back to Chandigarh. Did you go to the B school? No, you No. didn't. So basically I got selected, और उसके बाद 1 महीने के बाद ज्वाइन करना था. तो मैं वो 1 महीने में मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए. I was 21 and I realized, boss. Do you regret not No, doing that? not at all. I mean, this is such a beautiful life, it's a dream, yeah. Right. I dreamt of being where I am right now, and it has fulfilled. तो मज़े की बात ये थी कि उस समय वापस आए, बहुत लड़ाइयाँ हुई घर वालों के साथ कि पागल हो गया है, इसको एक्टर बनना है and all of that thing. I became an anchor. I came to Bombay. I became an actor and all of that. So I was very focused. I knew what I wanted to do. Spiritually, जो हम बात कर रहे थे, 2017, I met with I had a very major back injury,
where I was on bed for 5 to 6 months. I couldn't move an inch. uh, it was one of the worst times I'd seen in my life, because एक तरफ मेरी ज़िंदगी इतनी कमाल की थी, because professionally I had just hosted India's biggest reality show, The Voice. I was doing another show called Comedy Dangal. I had just wrapped up, and I was supposed to do the next season of Voice, and I was being offered a lot of other shows, live shows, television, uh, digital थोड़ा हो रहा था, म्यूजिक वीडियोस, एड्स, तो ऑफर बहुत सारे आ रहे थे. और अचानक से आई हैड दिस मेजर बैक इंजरी एंड आई एम ऑन बेड लाइक अ वेजिटेबल दैट आई कांट मूव एन इंच. तो एक तो फिजिकली बहुत वो था, ट्रॉमा था. इमोशनली उससे भी ज़्यादा था, बिकॉज यू डोंट वांट योर फैमिली टू सी यू इन दैट स्पेस. लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड. Shows which you were supposed to do, you're not doing it anymore. Money obviously stopped coming in. It was a very weird space, very weird. And the worst part about that phase was where my father had to carry me in his arms to the loo. Uh, it was bad. Like I just couldn't move an inch, and 15 घंटे मैं सोया रहता था, बिकॉज नर्व रिलैक्सेंट्स और स्टेरॉइड्स डले होते थे शरीर में, दवाइयाँ. और जो बाकी घंटे जगे हो उसमें क्या करोगे, फिर कुछ देख लोगे, बिकॉज हाउ डू यू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, यू विल सी कॉन्टेंट ऑन OTT. And that is where I stumbled upon a video from ब्रह्म कुमारीज और सिस्टर शिवानी. सुना मैंने उनको पहले भी बहुत बार हुआ था, घर में चलता रहता था, बट मैंने सुना, मुझे थोड़ा अच्छा लगा. रिलेट ज़्यादा हुआ. रिलेट तो नहीं हुआ. उस समय जो एनर्जी थी वो थोड़ा सा सूदिंग था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में टाइम पास कर रहा था. अब तो पढ़े हुए सब डॉक्टर्स, बाय द वे सब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका कुछ होगा नहीं. मतलब यू नॉट वॉक अगेन. या तो फिजियोथेरेपी चल रही थी, कि जो जितनी फिजियोथेरेपी हो रही है उसमें भी मैं सीधा नहीं खड़ा हो पाता था, और बिना सपोर्ट के तो खड़ा ही नहीं हो पाता था, और वो भी ऐसे टेढ़ा सा. तो फिजियोथेरेपी हो रही थी, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, दुनिया भर में कंसल्ट किया, कह रहे सर्जरी होगी, और अगर सर्जरी भी होगी तो उसके बाद आप सिर्फ 2 घंटा खड़े हो सकते हो एट अ स्ट्रेच. You won't have an active physical life. You can't go to the gym. You won't be able to host for long hours. You know how. माय गॉड. तो इन दैट वेरी नेगेटिव जोन आई स्टम्बल्ड अपॉन द वीडियो, और वो बड़ा ठीक लगता था, चलो ठीक है. आई कुडंट रिलेट टू इट ऑनेस्टली. सुनते रहते थे, तो अब ऑप्शन नहीं थी, तो 4 घंटा फिल्म देख ली, आधा घंटा ये सुन लिया. वो आधा घंटा करते 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 दिन के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे होने लग गया. And after a month, I started relating to that content. And in my head, I started visualizing that I will be back on my feet and I will start running and I'll have an active life. And I started doing certain things जो सिस्टर शिवानी बताते थे, जहाँ वो कहते हैं संकल्प से सृष्टि, कि जो आप सोचोगे वैसा बनेगा. और धीरे 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 mentally I became more stronger to deal with the situation. Otherwise I could have gotten into depression, or I don't know what black hole You of didn't get negativity. into depression even while being in that state. No. I'm glad that I stumbled upon that video at the right time, and it pulled me out of that zone. I could have actually fallen into that black hole without realizing it. And out of nowhere, one fine day, my brother Ishan, he tells me कि आपको अम्बाला लेके चलना है. मेरे को वहाँ कोई मिला है. He's from Ambala, and he's like, वो ठीक कर देंगे आपको. And that is what I was manifesting. And we went to Ambala, and I'm not making this up. I had put the story on my Instagram as I well. think I've read this somewhere or we've had this conversation. 6 महीने आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, हिला नहीं है. I go to Ambala, I meet this chiropractor जो सेवा करते हैं, सिर्फ पैसे आपने देने के बताया लिए. था मुझे. और 30 मिनट में मैं वॉक कर रहा हूँ. Like I'm walking in 30 minutes. After 6 months, it was the first day ever where I didn't need a nerve relaxant to sleep. It was surreal. How did I attract that chiropractor into my life is purely because of the thoughts. How did those thoughts come into this mind? All thanks to Brahma Kumaris. So I think Brahma Kumaris gave me a new birth. That chiropractor, भगत जी जिनको बोलते हैं अम्बाला में,
तो रवि भैया अम्बाला में है, तो आई ओ माई लाइफ टू देम, दे गॉट मी बैक। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें बदल गई कि तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा मेरे को ये हुआ क्यों था, क्योंकि उसके बाद तब से लेकर अब तक मैं आई डोंट नो कितने हज़ारों लोगों को वहाँ अम्बाला भेज चुका हूँ जिनकी बैक इंजरी या कोई प्रॉब्लम है। सो देन आई रियलाइज अच्छा यार मैं जरिया था बेसिकली, यू नो दैट फेज was basically an experience I had to go through to also help a lot of other people. Now, wherever I've gone in past 5 years, I've met I don't know how many people. अच्छा आपकी बैक इंजरी, आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ। वो वीडियोस मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, वो कंटेंट मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। तो दिन की शुरुआत वहाँ से होती है, दिन की समाप्ति वहाँ से होती है। सो बहुत सारी चीज़ें बदल गई क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में आ गया जो आपको पता लगा कि यार ये बहुत बेहतर है, जो आप देख रहे हो, जो कंज्यूम कर रहे हो उससे बहुत बेहतर है, एंड फिर निकल पड़े उस दिशा में। स्पिरिचुअलिटी और इस रास्ते की भी एक अपनी कहते हैं ना हाई है, अपनी एक अलग हाई है, और आई थिंक इट इज़ इनकम्पेरेबल टू एनीथिंग एल्स। वंस यू वॉक द पाथ देन ओनली यू नो। बहुत सारी चीज़ें मैं ये बार बार अपनी वीडियोस में भी कहती हूँ, और जब मैं क्लासेस करा रही थी तो वहाँ भी कहती थी कि ये सब चीज़ें ना बहुत एक्सपीरियंशियल हैं। आप कितनी भी लोगों से बात कर लो, कितने भी वीडियोस से सुन लो, बट आप तब तक उससे रिलेट नहीं करोगे जब तक आप उससे प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं करोगे। तब तक आपको ये सब ऐसा ही लगेगा कि ऐसे ही बोलते हैं, अरे इनको तो पैसे कमाने हैं, अरे ये तो ये है, वॉट एवर एल्स, राइट। बट उसका कोर समझने के लिए ना आपको एक्चुअली वो काम करना पड़ेगा, और तभी आपको समझ में आएगा कि हाउ इट सॉर्ट ऑफ टेक्स यू इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट world, and completely shifts your thoughts and improves your willpower and all of that. And I think healing journey की एक बहुत important element जो है, other than chiropractor, other than medical steroids and this and that, is your willpower. जब तक वो अपनी जगह पे स्ट्रांग नहीं है, और जब तक आप नहीं बिलीव करते हैं कि हो सकता है, तब तक वो शायद हो ही नहीं सकता है। सी ऑल्सो आई बिलीव्ड, पहले मानता था बट फिर वो प्रूव हो गया कि हम रोज़ खाना खाते हैं ना, हम तो खा ही रहे हैं, वो आप अपने शरीर के लिए खा रहे हो। आप जो स्पिरिचुअलिटी है, जो लोगों को लगता है कि यार वो तो बुढ़ापे में जब मरने वाले होंगे तब भगवान को, सो इट्स नॉट दैट, इट्स बेसिक। सो स्पिरिचुअलिटी इज योर फूड फॉर सोल। जिस तरीके से आप शरीर को रोज दे रहे हैं, ऑक्सीजन तो कंटिन्यूसली चल रहा है ना, तो आप अपनी सोल के लिए क्या कर रहे हैं? तो जब तक आप इस बात का एहसास ही नहीं करेंगे, तब तक वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। वो मेरी अभी की लाइफ के लिए नहीं है, वो मेरी लाइफ के एंड में है। नहीं होता ना, आई एम टू कूल फॉर दिस राइट नाउ। दैट इज ऑल्सो वन एटीट्यूड दैट कम्स इन, या दैट ओह दिस, ये बात की बातें हैं, ये तो हाँ, मम्मी करती हैं करेक्ट या वो करेक्ट करता है। करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट अगर आप अभी करते हो और मैं अगर अभी फॉलो भी करती हूँ, अब तो फिर भी एक्सेप्टेंस आ गया है, बट कुछ साल पहले तक तो ये होता था, यार बूढ़ी हो गई है क्या, हाँ, बड़ी बोरिंग हाउ बातें ओल्ड हैं। आर यू। सेक्स लाइफ के बारे में बताओ हमें अपनी, हाँ, हाँ ये बताओ एग्जैक्टली, यार। कुछ ये बताओ यार, एक्साइटिंग, योर लाइफ इज सो बोरिंग ऑलरेडी जस्ट इन योर 20s। सो आई गेट दैट कॉन्वर्जेशन। गुंजन, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ a bunch of shows already. आप OTT पे भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, करते रहते हो, projects करते रहते हो। तो talk about the content, the kind of content that is getting created these days. And I'm a firm believer, and I'm not a naysayer, I'm a firm believer that there is something for everybody. It depends on the consumer what you want to take out from that. But take us through this whole a kind of a rat race that has become between OTT, social media, so many platforms giving you so much content all the time. How do you think the people who don't know any better, or the youngsters, how do they keep their sanity, and they stay focused in such an era? यार देखो, सबसे पहले तो एक हमारी कहावत होती है ना कि जितने में उतनी बातें। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई है सोशल मीडिया के थ्रू, एवरीबडी वांट्स टू हैव एन ओपिनियन, नथिंग रॉन्ग इन इट। आपको आज़ादी है अपनी बात कहने की। जो ओटीटी पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है कि वो अपना कंटेंट डालना चाह रहे हैं कि अब मुझे लगता है ये कहानी बननी चाहिए। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू वॉच। सो there are a lot of crime thrillers which are there. There are a lot of comedies, drama, documentary. The genres are huge, and the library every single day is getting bigger and better. Of course. Whether it is on YouTube or any OTT platform. So a तो बहुत अच्छा है. From a business point of view, it's brilliant because it gives great opportunities to a lot of people, because internet has democratized the entire process of who becomes a star, who becomes bigger. The wall's broken, so that's phenomenal. Like today, look at the biggest stars on digital media. Nobody knew them few years ago.
Oh yes, I was yesterday at YouTube Works, and my God, these people are stars. करेक्ट है ना, है, Millions of followers राइट and राइट। things like तो that. वो पहले वो पार सिर्फ कुछ क्रिकेटर्स और कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की होती थी, आज वो बहुत सारे लोग हैं। मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, कोई स्पिरिचुअलिटी पे बात करता है, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा स्टार है। कोई रेसिपी की बात कर रहा है, फूड रेसिपी की वो बात है, कोई सिर्फ टेक के बारे में बात कर रहा है, वो भी एक स्टार है। पहले भी ये लोग थे, जानता नहीं था, थैंक्स टू इंटरनेट। दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। दूसरी तकलीफ ये हो गई है कि अभी इतना कुछ है, you know, I don't think so the human mind is capable of consuming that kind of content also। मैं जब कभी वो देखता हूँ इंटरनेट का अंधा कुआं, इंस्टा रील्स, Of वो ये है कि once you start scrolling, like every 6 seconds something else is happening, it's not even one thought, like the moment you scroll एक ट्रैवल दिख रहा है, एक खाना दिख रहा है, एक जोक दिख रहा है, एक जिम दिख रहा है, एक क्या मतलब इतना डिसओरिएंटेड है वो। सब अच्छा लग रहा है, मजा आता रहा है, टक 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 टक। बट आई डोंट नो आपका दिमाग क्या प्रोसेस कर रहा है यार। मतलब वो भी अंदर से निकल के एक दिन बोलेगा, भाई तू करना क्या चाह रहा है मुझे बता दे। दिमाग प्रोसेस क्या कर रहा है वो तो खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन कितना ज़्यादा आप एक नेगेटिव और डिससेटिस्फैक्शन वाले जोन में जा रहे हो, क्योंकि अगर आपने 6 सेकंड ट्रैवल देखे तो आपको ट्रैवल भी करना है, आपने 6 सेकंड जिमिंग और सिक्स पैक एप्स देख लिया तो आपको वो भी बनाने हैं, आपने एक ब्यूटी रूटीन देख लिया और स्किन फ्लॉलेस देख ली तो मुझे फ्लॉलेस स्किन भी चाहिए। तो क्या क्या मिल सकता है ह्यूमन को इस तो लाइफ में? प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं हर एक चीज़ का एंड रिजल्ट देख रहा हूँ, मैं उसका प्रोसेस नहीं देख रहा। और वो 6 सेकंड में मैं एंड रिजल्ट ही दिखा सकता हूँ, प्रोसेस तो दिखा नहीं सकता। व्हेन आई पुट कंटेंट ऑनलाइन और एनीबडी पुट्स इट, दे आर ट्राइंग टू बेसिकली say something in the smallest, in the shortest possible way, in the most effective way, so they're trying to put out the best thing possible। और सामने वाले को पता ही नहीं उसका प्रोसेस क्या है, सो उसको लग रहा है यार इसके 6 पैक एब्स हैं, यार 10 लोग देख ले सबके एब्स हैं, हमारे एब्स नहीं है। अब किसी को ये नहीं पता कि उसके पीछे क्या गया है। सेम जो ट्रैवल कर रहा है, लाइक यू नो इफ यू गो थ्रू माई इंस्टाग्राम, लाइक समबडी वाज सेइंग यार आप ट्रैवल ही करते रहते हो यार, मतलब कुछ काम धाम भी करते हो कि नहीं करते हो। सो दे डोंट नो व्हाट आई डू, यू नो, अगर कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेगा। So that's the thing, that basically it gives you this hollow thing, this, you know, puts you in delusion where everybody is happy, everybody is perfect, क्योंकि किसी को ये दिख तो रहा नहीं कि भैया 50 फिल्टर लगा रखे हैं, एक फोटो एंगल में 1 घंटा लगा के ये फोटो सेलेक्ट करके आपको डाली गई है। बट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट, you're seeing a real perfect world and you see your blackheads and you see pimples and you see your life कि यार ये कपल तो घूम रहे हैं, भाई मेरा हस्बैंड जो है वो लैपटॉप पे लगा हुआ है, यू नो इसकी बीवी बड़ी कूल है, डांस करिए यार मेरी बीवी नहीं करती है, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो इट डज पुट यू in a really weird situation, and the irony is, and this is the biggest irony, जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं ना वो भी उसी जोन में है, जो कंज्यूम That's कर रहे हैं what. वो भी उसी जोन में है, कि सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सब उसको देख के Right. परेशान है। सो या इट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया टुडे, बिगेस्ट ड्रॉबैक, very unfortunate। And I hope we could start addressing it, where apart from just the final product we could also talk about the journey। दिस इज़ वॉट द शो इज़ ऑल अबाउट, द जर्नी विद इन, कि कैसे आप इवॉल्व होते हो अपनी जर्नी के थ्रू, और यू नो जो एंड रिजल्ट को देख के हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार यही चाहिए, दिस इज़ इट, but we don't see through the process, like you said, and the process does take effort, and you have X units only to put efforts in. तो आप X यूनिट सिर्फ एक डायरेक्शन 2 डायरेक्शंस में लगा सकते हो, आप 10 चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हो, और अगर आप कर भी रहे हो तो उसमें वो एक लेवल की परफेक्शन एक्सपेक्ट करना इज फुलिश। यू नो अगर आपको मिल जाए और आप इतने जीनियस हो, दैट इज वेरी रेयर पीपल, इवन इफ दे एग्जिस्ट, बट अदरवाइज you have to just streamline what you want to do and just keep moving forward in that direction. You can't just aspire to have someone else's life because it looks more exciting. Yeah, I agree। एंड समटाइम्स मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो उस लाइफ तक पहुंच भी जाते हैं, बट देन दैट डजंट एक्साइट देम एट ऑल, कि यार ये तो वैसे लग रही थी, मतलब ऐसी वाली गर्लफ्रेंड अब मैंने बना तो ली, and these are legit conversations I've had with my friends, like yaar dated a few girls, this and that, and saw someone online कि यार इस तरह की I think I'm looking for this girl, मिल भी गई, शादी भी हो गई, और उसके बाद
things go another way. So and that goes for a lot of things, that goes for anything that you aspire for. तो उस तक पहुंच भी जाना और उसके बाद उससे कंटेंट होना भी एक अनदर जर्नी है. आपको लगता है कि ये देखो मिल हर जाएगा, मैं चीज में बहुत एक खुश हो एफर्ट है, जाऊंगा. हर चीज में एक एफर्ट है. एवरीबडी वांट्स टू बी अ स्टार, नोबडी वांट्स टू पुट इन द आवर्स टू बिकम अ स्टार. Everybody wants to have the perfect relationship. Nobody wants to pour in the energy and effort to make it into a perfect relationship. Also, क्योंकि हम उस घोर कलयुग जोन में, स्पिरिचुअलिटी हैशटैग, जो मैं सुन रहा था कि हम उस जोन में जहाँ पर हम कह रहे हैं मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, कि यार मैं आपके पॉडकास्ट पे आया, मुझे क्या मिला. मैंने आपके साथ देने photo- का स्पिरिट तो है ही नहीं. मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने आपके साथ फोटो खिंचवाई, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, मुझे कितनी ट्रैक्शन मिली है. आपने मुझे टैग किया या मैंने आपको टैग किया, कॉन्वर्सेशन ही उतनी हो रही है. मैं रिलेशनशिप में कह रहा यार मैंने उसके लिए ये कर दिया, उसने मेरे लिए क्या किया, मैं उसके लिए इतना कुछ, मुझे क्या मिला. सो द कॉन्वर्सेशन इज एवरीबडी इज बिकम मुझे क्या मिला, दे दो, मुझे दे दो. मतलब हम मुझे एक मैंने कोट ना बहुत बार पढ़ा इंटरनेट पे कि आई वांट अ गाय और अ गर्ल who looks at you the same way this person is looking at this person. Oh God. Right? सुना है ये बहुत बार सुना हुआ है ना. It just pisses me off so much. नो बट करेक्ट है ना. मतलब कि यार जिस तरीके से ये इंसान इस खाने आइसक्रीम को को देख रहा है, हाँ, या exactly. एक अपने पार्टनर को देख रहा है, मुझे भी ऐसा इंसान चाहिए. सबको वो इंसान चाहिए, लेकिन बनना किसी को नहीं है. किसी को नहीं अरे है. तुम बन जाओ यार. So why don't you initiate and you become that person in your life where you fulfill someone else's dream and then inspire the other person. तो वो अभी हम उस जोन में जहाँ सबको चाहिए, जो चाहिए होता है ना, और जो गिव एंड टेक. सो जो टेक का जो फंडा होता है ना, अगर आप सिर्फ इसी से सोचो तो द टेकिंग का वाइब्रेशन ही यही है कि मेरे पास कम है, तो आपके पास हमेशा ही कम रहेगा. अगर आप टेक 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 ही सोच रहे हो कि मुझे क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, ये चाहिए, उससे ये चाहिए, तो आपका वाइब्रेशन हमेशा ही लो रहेगा, क्योंकि आप हमेशा खुद को बार बार कह रहे हो कि आपके पास कम है. तभी तो चाहिए. तो जब तक आप अपने वाइब्रेशन को उठाओगे नहीं, तो फिर आप सोचते हो मेरी लाइफ ऐसे क्यों नहीं लगती यार. सो वन हैज टू कम फ्रॉम अ गिवर्स माइंडसेट. एंड मैंने क्या दिया, आई थिंक वहाँ पे वी ऑल हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू in a lot of ways. No, of course you are this amazing person that you are, Gunjan. No, I'm but the tell best, me but what ऐसी बातें ना किया you करो. are the best, of course. Yeah. But tell me what triggers you. I see you mostly calm in a lot of situations. Oh, you have no idea. Please ask my team, Jignesh, my manager, Nikhat, Anuj, people I deal with the more. Yeah. जिनके साथ मैं please contact Shobha, tell her Yeah. what triggers me the most. You tell me now. I'm asking you the question. तो What पहले pisses you off? What gets you like, oh, I'm in that zone now? something which affects my work. So for example, हमने कुछ चीज़ें करनी है, मेरा सारा ध्यान काम पे होता है, मेरा सारा ध्यान अपनी ज़िंदगी में है, और वो क्यों है मैं उसका भी बताता हूँ, ट्रिगर क्यों है मैं भी बताता हूँ. तो एक तो मैंने ना ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सीखी, दिस होल concept of gratitude, and I'm not saying it just for the heck of it. Again, there's a reason I'm saying it. और आप देखना इसका मज़ा क्या है. हम अभी सोशल मीडिया की बात करें, मैं देख रहा अरे यार ये भी बहुत अच्छा है यार, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है. और ऑल ऑफ अ सडन मेरे को बहुत लग रहा है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. जब आप उस जोन में चले जाते हैं जहाँ पे आप रात को 3 चीज़ें लिखते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, कि यार आज ये बहुत अच्छा हुआ, आज यार दाल खाई थी बहुत ही कमाल की थी, अरे यार आज यार वो इंसान मिला बड़ी अच्छी बातें कर गया, मैं तो बहुत बेतुकी सी बातें कर रहा हूँ. इट कुड बी एनीथिंग. यार आज यार मैं गाना गाया बड़ा अच्छे सुर में लग रहा था, कुछ भी. आई एम जस्ट सेइंग इट कुड बी एनी It could be any bizarre thing. The moment you start talking about your life and the smallest thing which is really amazing, then you start to feel यार मेरी जिंदगी बड़ी कमाल है यार, हाँ यार मेरी जिंदगी में ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है. So what has happened is that you've shifted your focus from other people's life to your own self. To your own self. And that is where you start to feel कि यार बहुत ही अच्छा हो गया. Like I remember कोविड में लोग मुझसे पूछते और भाई कैसे हैं, मैंने कहा बहुत ही अच्छे हैं यार. तो कह रहा है यानी कि मतलब पैसे पूसे छाप रहे हो. एंड आई एम लाइक हाँ मतलब ऐसे यार इस दौर में मैं स्वस्थ हूँ, मेरे आसपास परिवार में लोग स्वस्थ हैं, मैंने किसी अपने बहुत करीबी को नहीं खोया, ये बहुत बड़ी बात है. सो पीपल वर लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आई वाज लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो जब आप अपने पे ध्यान देते हो ना और आप शुक्रगुजार होते हो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, तो बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में से हट जाती हैं. तो इसलिए ज़िंदगी अच्छी भी हो जाती है.
शांत भी हो जाता है इंसान, मज़ा भी आता है। अब ट्रिगर क्या करता है, ट्रिगर बहुत बार बहुत अजीब बातें करती हैं यार, क्योंकि मेरे को ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ काम पे ये ज़रूरत है और वो हुआ नहीं, जैसे कि कपड़े टाइम से प्रेस होके नहीं आए, नहीं नहीं, अरे बहुत समथिंग लाइक नहीं दैट, नहीं नो? नहीं नहीं, मैं फॉर डू यू एग्जांपल थ्रो टैंट्रम्स? टैंट्रम नहीं है, टैंट्रम करते आई हो? गेट नो, यू थिंक भाई साहब ये क्या है, ये This वो is कोई athleisure, like you were saying athleisure with earlier. some expensive, Yeah. no no, but I'm just saying वो टैंट्रम नहीं है। सो क्योंकि मैं अपने काम में 200% डालता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे आसपास के जो मेरे लोग हैं, जो मेरी टीम है, वो लोग भी 200% डालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो 200 की जगह 100% हो जाता है या थोड़ा 90% हो जाता है, और उससे ना कुछ अफेक्ट कर जाता है बेसिकली एंड रिजल्ट ऑफ द वर्क। वो तकलीफ देता है मुझे कि यार हमारे किसी एक के एफर्ट की वजह से वो जो एंड गोल था, जो काम होना था, वो काम नहीं हुआ। मैं उस पे खिंच जाता हूँ, और फिर तो जो मैं खिंचता हूँ तो फिर मैं खिंच ही जाता हूँ। पूरे फैल जाते हो. हाँ, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, बहुत अजीब लगता है। हाँ, हाँ, बहुत गुस्सा। you shout and all of that, huh? पहले चिल्लाता था, अब सार्काज्म से लेन देन कर लेता हूँ। अच्छा, तो लाइक अब वो भी इम्प्रूव हो गया है. हाँ, पहले आई डिडंट नो हाउ टू कंट्रोल माय एंगर, दैट्स अ रियलिटी। बहुत वर्बल अब्यूज बट आई फ्रॉम, थिंक हर किसी को एंगर मैनेजमेंट का एक कोर्स तो जरूर करना चाहिए. आई यार थिंक सबको एक्चुअली ही ना होते हमको हैं पता ही नहीं है इश्यूज. कि गुस्सा आ रहा है तो उसका करना क्या है, करना क्या है, चैनलाइज क्या करना है। तो जो टीवी पे देखा चला कि अच्छा गाली देने से ठीक हो जाता है, या अब कोई चीज फेंकने से ये हो जाता है. यार कुछ भी जो भी है, कुछ भी. हम बेसिकली कंडीशनिंग वो हो रही है जो हम देख रहे हैं। और हम तो पंजाब में हैं, तो गालियाँ तो हमारी वो कैब में ही हैं, वो ग्रामर का हिस्सा है जो हमें पढ़ाई नहीं जाती लेकिन होती हैं। इट्स जस्ट अ जोक, इट्स नॉट रियलिटी। ऐसा कुछ सोचे कि भाई मतलब पता लगा चंडीगढ़ में ये पढ़ा रहे हैं, तो इट जस्ट बिकम्स योर लाइफ स्टाइल। एंड Right. अनफॉर्चुनेटली वो एंगर आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ पे वो लैंग्वेज ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट। सो वो लगा कि अच्छा यार ऐसे बोल दोगे तो शायद सामने वाले को समझ में आएगा, या किसी को और तीखा चुभाओगे अपनी बातों से तो शायद उसको समझ में आ जाएगा। इवेंचुअली रियलाइज़ किया कि भाई वो 1 घंटा चिल्लाने के बाद आप ही का खून खराब हो रहा है, आप ही की एनर्जी खराब हो रही है, दूसरे का तो हो ही रहा है बट आपकी ज़्यादा होती है। सो आई अंडरस्टूड दैट, और वो एक प्रोसेस था यार, वो धीरे 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 करते करते बेटर तरीके हुए कि आप एंगर को चैनलाइज कैसे कर सकते हो, ट्रिगर्स को कंट्रोल कैसे करते हो। बट आज भी मैं ट्रिगर इसी बात से होता हूँ कि यार हमने काम करना था और वो हुआ। लाइक फॉर एंड आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, यू टोल्ड मी व्हाट टाइम, 11. जो भी आपने टाइम बोला, हाँ. और मैं कुछ और चाहता था ये, और मैंने विद इन नो टाइम मैंने कहा इतने बजे करते हैं, डन इट, हाँ. कि भाई इतना क्या कॉम्प्लिकेट करना। हाँ. हाँ. So that was I don't have any tantrums. I came here. We were now if the setup wasn't there, और उस समय हम ये सोच रहे होते कि करना क्या है, तो मे बी थोड़े टाइम तक तो मैं ओके, पेशेंस एंड ओके। बट अगर तब भी नहीं होता तो मुझे लगता है यार मैंने अपना समय दिया आपको, मैं टाइम से आया, हर चीज़ रेडी है। आप द लीस्ट यू कुड हैव डन इज एटलीस्ट गेट द सेटअप रेडी। हाँ, सो लेट मी गेट टू अनदर पॉइंट विद हाँ दिस. हाँ। हमारे लाइव इवेंट्स हम्म, जिसमें 10 बारी ड्राई रन वो लोग चाहते हैं, लेकिन जब भी आप पहुंचो 3 घंटे आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि सेटअप नहीं रेडी होता, वो नहीं रेडी है, टेक्नीशियन नहीं रेडी, वहाँ एलईडी नहीं चल रही, वहाँ ये नहीं. तब आप कैसे डील करते हो? या यू लाइक लिसन, आई हैव कम, आई टोल्ड यू आई विल बी हियर फॉर एन आवर एंड नाउ आई एम ऑफ. सो मैं ऐसा नहीं करता। तो इन माई हेड आई नो दिस थिंग दैट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ क्योस इवेंट मैनेज। सो हम मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट का मतलब ही हम करेक्ट, किसी करेक्ट. चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, और प्राइमरली हमें क्योस को ही मैनेज कर रहे होते हैं। माई जॉब एज अ प्रोफेशनल इज टू एड वैल्यू एंड टेक अवे दैट you know chaos and make it organized in whatever capacity I can. I know my event managers, I know people who are shooting, directors, production people, वो as it is बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो बहुत बार बहुत गलतियाँ होती हैं किसी एक इंसान की वजह से, पूरा शूट डिले हुआ है या कुछ भी होता है। My job as a professional, and let's talk about events first, is to ensure कि can I ease the burden of your, then I would call myself as a professional where I have taken some burden off your shoulder and made it easy. If I have come to an event and I am adding more pressure कि बॉस मैं आ गया हूँ, कर लो, नहीं करना, ऐसी ऐसी, मैं जा रहा हूँ, ये मेरा टाइम था, वो मेरा था, तो आई थिंक आप एक और बर्डन बन रहे हैं मेरे
इतने बड़े करियर में जहाँ मैंने 4-5 हज़ार शोज होस्ट कर दिए हैं, इन 5,000 में से शायद 20 बार ऐसा हुआ होगा जहाँ शायद ही किसी ने मेरा समय बर्बाद किया होगा, बिकॉज सबको पता है क्या हो रहा है, एंड आई एम एट ईज। ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो रहा है, 10 मिनट बात कर लेते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स फाइन। Otherwise it's also your energy, right, what It's you're also doing. Yeah. a sign of somebody exhibiting great qualities of patience. क्योंकि हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी में ही मैं देखती हूँ कि पेशेंस बहुत जल्दी शायद लोग खो देते हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्चू है, सीखना चाहिए हम सभी को। जैसा आप कह रहे हो कि उस टाइम पे इतना क्योस चल रहा होता है, तो मैं पहले इस चीज़ से स्ट्रगल करती थी, इस क्वेश्चन से, विच आई हैव ऑल्सो मेड पीस विद नाउ, कि उस टाइम इतना क्योस सच में चल रहा होता है कि यू हैव टू चॉइसेस। वन, यू विल बी अ टीम प्लेयर एंड यू विल से ओके यार हम सब साथ में फेस कर रहे हैं। सेकंड, यू विल बी लाइक लिसन, आई एम द पर्सन who's gonna be on stage and I have these many hours to spare for you and I don't have time for this because it whatever affects me and stuff like that, and you can just distance yourself from that. A lot of people choose this path, a lot of people choose this path, but I think वो टीम मिलके chaos reduce करना और कैसे आप उस समय उस environment की energy को और disturbed ना zone में ना ले जाकर उसको कैसे आप ease out कर सकते So हो। I मैं तो think that's a डिस्टेंस नहीं great करता अपने आप को, मैं जेन्युइनली, मेरे को होता है कि मेरे को बताओ करना क्या है, कुछ और कर सकते हैं यार, क्लाइंट से ये ब्रीफ नहीं आया, क्लाइंट से ये नहीं हुआ, अच्छा ये शो फ्लो चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्या है, अरे इसको तो अभी देना था, 3 बजे की ड्राई रन थी, अरे यार मेरे पास नाम नहीं आया, ये नहीं आया, लाइक चिल यार, same. जब आएगा तब दे दियो, मैं खड़ा हूँ स्टेज पे, आई हैंडल। And sometimes these young kids जो होते हैं like the name has not come, will you be okay if I give it to you later? I said आराम से, कोई बात नहीं, even if you'll give it to me on stage it will be Right. done, don't worry. Like I think in my capacity, and I've done that, by the way, without context, Oh without yes. anything, I've done shows for hours. I've gone on stage and I've done shows for hours where I have entertained the audience and I have had a great time as well. और मैं यही बोलता हूँ कि तुम दे दोगे तो मैं वो बोल दूंगा, नहीं भी बोलोगे मैं शो कर दूंगा अपना, कोई टेंशन नहीं है. सो दैट काइंड ऑफ ईजेस द अदर पर्सन. नाउ इट गिव्स देम the opportunity to focus on whatever and not think कि अरे यार अब इसको मैं हैंडल कैसे करूँ, इसको भी देना है मेरे को. I think as a professional I come prepared with a lot of things. अब ऑब्वियसली मुझे ये नहीं पता होगा ना कि कौन किसको अवार्ड दे रहा है या कौन What is your प्रेजेंटर. process, Gunjan? Take me through your process. How do you prepare for these things? Like if someone says that you have to engage the audience for let's say an hour, और हमारे events में ऐसा होता है, यार उसने आना था, ये presentation चलनी थी, वो नहीं आया, speaker नहीं आया, ये नहीं हुआ, या फिर कुछ delay हो रहा है, या बार जल्दी खोलने के लिए हम prepared नहीं है, तो चलो तुम 1 घंटा खींच लो, आधा घंटा खींच लो, ऐसा हो जाता है, right? So what is your preparation that goes into it to prepare for that 1 hour? So my life is a preparation for everything. So whatever I do on a daily basis prepares me for anything when I'm Like, on do stage. you write stuff? Do you write Have some? you ever seen me? I have not, so Yeah. that's why I'm asking that. So Do you do it no, I somewhere don't. पीछे घर पे करके No, अपना I don't तैयारी do it. करके I आते हो? don't do it. कैसे मतलब? Yeah, I don't How do you know. produce out this content? It is purely, so on stage it has always been impromptu. I have never planned. Every person who's ever hosted with me, they Have know. you ever done a शेरो शायरी on stage? You think तुमने किया? मैंने कभी नहीं करी. I Yeah. got this call once from an event manager. He's like, आप ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना. We're discussing the show. So the show is confirmed and all of that. And एक दिन पहले is like, फिर यहाँ पे ना आप कोई 2 शेर बोल देना. Audience में ना ये एक जन है, उनका भी नाम भी आप प्लग इन कर देना शेर में ऐसा. I'm looking at him, I'm like, आपने कौन सी मेरी वीडियो देखी या किसने आपको मेरे बारे में बताया? आई डोंट डू शेरो शायरी, आई कांट डू इट. आई मीन इट्स अ सेपरेट थिंग, आई एंजॉय लिसनिंग टू इट एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई कांट डू इट ऑन स्टेज. No, I can. It just that it depends what I'm doing at that point of time. Yeah, correct, right? But primarily it's humor. Most of the times, it's my sarcasm, it's my relatable content which is happening there. So one of the things which I do is observational humor. I'm not a stand-up comic, but most of my shows I'm as it is doing a 30-minute set as it is जो हो रहा है वहाँ पे. बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं यार. मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ पहली बार काम कर रहे होते हैं ना, वो सच्ची में बहुत घबराए होते हैं कि यार ये हमको बता नहीं रहा, ये ना हमको बता नहीं रहा है क्या करेगा. एंड आई एम लाइक, आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई डोंट गो इन विद अ माइंडसेट. आई गो ऑन स्टेज, आई सी व्हाट इज हैपनिंग एंड आई स्टार्ट टॉकिंग. It's purely as a cricketer. Back home at net practice, you can only play, as a batsman you can play, but you don't know what's going to happen when you will be at that crease and you'll face the first ball. जो बॉल आ रही होगी वही मारेगा ना. खेलेंगे.
तो इवेंचुअली क्या होता है, जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, फ्रेमवर्क है हमारे पास, हमको मालूम है हमको क्या करना है, बट विद इन दैट फ्रेमवर्क आप क्या शब्दों का चयन कर रहे हैं, आप किसके साथ बात कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं, किस टोनैलिटी में कर रहे हैं, कितना ह्यूमर, कितना इमोशन, कितना इंफॉर्मेशन आप उसका मिश्रण है, करेक्ट। वो एक चीज़ है जो मैं उस समय डिसाइड कर रहा हूँ. But it is also because it's skill which I've developed, but it's also an inborn talent which God has given me, and I think He's given me something really unique. Like I keep saying the same thing again and again to a lot of people. भैया मुझे ना आपकी ये line somebody came up with. It's like I wrote that line. It's beautiful. I'm going to use it in my show. I said disclaimer दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ मत बोला करो, because तुम कभी क्या बोलोगे और किस टोनैलिटी में बोलोगे ना, वो बहुत उल्टा पड़ सकता है. And it has happened with a lot of people. They've seen my videos, they've probably seen me at live shows, they've used the same content somewhere, and people are like, ये क्या बात कर रहा है? So I think as an anchor, you genuinely pour your heart out and you bear your soul on stage. तो आप जैसे हैं आप उसको फेक ही नहीं कर सकते. As an actor you become someone else, but as an anchor आपकी सोल बाहर आ जाती है और within 30 seconds वो देख सकता है कि यार ये फेक बातें कर रहा है कि ये रियलिटी में ऐसा है. जैसे कई लोग होते हैं ना, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. नहीं, आई ट्रूली बिलीव दैट आप जो रियल में है वो एनर्जी और वो चीज़ सामने वाले तक पहुंचती है 100%, चाहे आप कितना भी सोचे कि आई हैव ट्रिक देम, आई हैव Yeah. फूल्ड देम और आई हैव Yeah. डन इट सक्सेसफुली, बट वो एक वाइब्रेशनल एक्सचेंज हो जाता है. एंड यू ऑलवेज, एंड आई पर्सनली फेल्ट दिस, कि वहाँ से फिर आपको दोबारा कॉल नहीं आएगा शायद, या फिर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी उस शो के लिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्योंकि खुद को तो पता होता है ना, खुद से आप कैसे तो झूठ मेरा इतना बोलोगे. थॉट भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही थॉट होता है. आई became an anchor to entertain people. I had a high paying career. If I would have gone to that B school, मेरी स्टार्टिंग सैलरी वो लगती जितनी शायद मैं आज कमा रहा हूँ, उतनी हाई सैलरी लगती उस टाइम पे. आई डोंट बिलीव दैट दो, बट ठीक है. ठीक है, मैं नहीं, बट आज कोई भी आज आप जो कमा रहे हो, आई ओके, मीन आप आप कोई प्लीज. भी टॉप 6 बी स्कूल से निकला हुआ आदमी बहुत पैसे कमाता बहुत है. पैसे ठीक है, कमा रहा है आज की डेट सो में. बात पैसे की नहीं है, बात अप्रिसिएशन की भी नहीं है. मैं क्यों आया, मेरे को वो स्टेज अच्छा लगता था, एंड द ओनली थॉट इज टू एंटरटेन पीपल. सो व्हेन आई गो ऑन स्टेज, माय one core agenda is, am I entertaining them? Are they having a great time? Are they enjoying themselves? Can this person forget his life for these 3 hours? Can this person feel really elevated in my company? Can he really feel uh, valued in my company? That's my whole sole agenda. I may be a known celebrity, I may be a known individual, and for him it may be a really big moment. अरे यार इसको स्टेज पे देखा. But I think after 30 seconds वो भी खत्म हो जाता है. If I am not connected with them and if I am not entertaining them and not engaging with them, they won't care. We've seen that a lot of times. वी डोंट केयर. Eventually मेरे को उतना मज़ा आता है कि यार मज़ा आना चाहिए सबको. That's all. मेरे को उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई शो मिलेगा, ये होगा, वो. मेरा एक सिंपल उतना मात्र एजेंडा है जिसकी प्रेपरेशन मैं सारी जिंदगी करता आया हूँ. मेरे को आप कल खड़ा कर दो ऑस्कर के स्टेज पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मेक मी फ्लाई टू LA कि भैया जाओ और ये ऑस्कर्स हैं. हाँ यार चलो. सर आपने मिरर के सामने वो किया है अपनी ऑस्कर नहीं, मैंने कभी स्पीच नहीं और किया. ये नहीं, सब? मैंने कभी नहीं किया. मैंने कभी नहीं मैंने किया. मिरर के सामने नहीं किया, बट मैंने लिखा है. नहीं, मैंने कभी नहीं लिखा. आई थिंक आई एम टू स्पॉन्टेनियस टू राइट एनीथिंग. आई थिंक आई विल बी एबल टू कम अप विद समथिंग देन एंड देयर. मैं इनफैक्ट कभी कभी बोलता हूँ, क्लाइंट मीटिंग्स भी होती है ना, सो जैसे मेरे साथ कभी कोई को होस्ट होती हैं तो वो ना, वी हैव नेवर होस्टेड अ शो. हैव यू नेवर होस्टेड अ शो टुगेदर? या तो वो सारा पैसा इन पे इतना Subtle खर्च हो जाता plug-in. है, तो वो सारा पैसा आप पे इतना खर्च हो जाता है, आपको वो इतना मेरे लिए पैसा दे देते हैं कि मेरे लिए कुछ बचता नहीं ऐसा उनके नहीं है, पास. ऐसा- बिल्कुल ऐसा- ऐसा ही ऐसा है. कुछ भी नहीं है. गुंजन के स्टाइलिस्ट के लिए, हेयर स्टाइलिस्ट के लिए, मेकअप, वार्डरोब, एवरीथिंग. ग्रीन रूम भी अलग से, The 2 business BHK class, ग्रीन रूम भी चाहिए, द business- बिजनेस क्लास टिकट yeah. भी चाहिए, तो ऐसा इतना कुछ भी खर्चा हो नहीं. जाता है कि फिर हमें ऐसा कहाँ कुछ भी नहीं पैसे है. नहीं मिल ऐसा पाएंगे. यू नो हाउ इजी गोइंग आई एम. बट ऑल्सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स तो ऐसा मीटिंग होती है कि Right. क्लाइंट कुछ ब्रीफिंग दे रहा होता है और ये लिख रही होती हैं, वो लिख रही होती हैं लड़कियां अपने हिसाब से जो भी पॉइंटर्स है, और मैं ऐसे बैठ के सुन रहा होता हूँ. तो क्लाइंट थोड़े टाइम बाद, जिसने जो पहली बार काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लिख नहीं रहे यार. तो मैंने कहा मैं लिख लिया ना तो मैं भूल जाऊंगा. मेरा ध्यान आप ही पे है और
मेरा एक वो भी है कि जब भी कभी ब्रीफिंग होती है ना, तो ब्रीफिंग खत्म होने के बाद जब सब होता है तो फिर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, वेल डन, अब रुको, अब मैं रिपीट करता हूँ. सो आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग, टक 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 टक. So it just works for me because that's a skill I am born with, or probably I've developed. Maybe my brain is sharp enough to adapt it. Again, no credits to me. भगवान ने ऐसा एक चीज़ बना दिया है. मेरे को भी नहीं पता वो कैसे होता है. बट मैं लिखता नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखता, सिवाय नाम और डेजिग्नेशंस के जो वहाँ पर बोलने, उसमें मेरे को कोई शर्म नहीं है क्यू कार्ड लेके जाने में. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई रिमेंबर इट, आई डोंट नीड अ क्यू कार्ड, बट आई स्टिल कैरी इट कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं पढ़ लूँ. बट अदरवाइज मैंने कभी कोई ना जोक लिखा ना कुछ लिखा, बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग एंड आई एम जस्ट बीइंग नेचुरल देयर वहाँ पे. Yeah. Beautiful. How do you take feedback, especially negative? अगर कोई आपके बारे में आपकी बंदे रखे हुए हमने individuality दो के तीन बारे में कि दे कोई, फिर हम तोड़ देंगे टांगे उनकी. तो ऐसी है, लेना ही क्यों है नेगेटिव फीडबैक, जब नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए. नहीं, बट मजाक आप कर रहे ये नहीं सोचते हो कि उससे कुछ मेरे लिए शायद एक इनपुट है, मुझे लेकर शायद कुछ No, no. इम्प्रूव करना है, स्कोप ऑफ No, no, इम्प्रूवमेंट no, है या क्या? so I'm open to everything, but so I don't seek anything. I don't seek validation in any form. नो, बट इफ समबडी इज वॉकिंग अप टू यू से गुंजन ये नहीं क्लिक किया यार, ये शायद तो वो तुम्हें ऐसा डिपेंड करना. करता है कि वो कौन इंसान बोल रहा है. हम्म, कि क्या उस व्यक्ति को उस फील्ड में अनुभव है. अगर तो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं नहीं, लेकिन गुंजन क्या होता है ना, शो पे जब आप होस्ट कर रहे हो एज एन एक्टर शायद दैट इज ट्रू, बट एज एन एंकर जब आप शो पे हो तो अगर 500 लोग या 1000 लोग उस ऑडियंस में, तो कोई भी कुछ भी कह सकता है. मज़े की बात बताऊँ, और आप यकीन नहीं करोगे, इतने सालों में एक आदमी नहीं आया जिसने कहा कि भाई साहब ये हाँ, गलत खैर है. हमें तो कोई नहीं कहता, बट नहीं नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू. हम्म, और मैं खुद बोल रहा हूँ, जो मैं थोड़े देर पहले भी बता रहा था कि जो चीज़ें मैं बोल जाता हूँ ना, तो कभी कभी लगता है भाई साहब ये बहुत ज़्यादा हो गया. लाइक फ्रॉम a neutral perspective, people enjoy. I think they also sense कि किस भाव से बोल रहे हो. सबसे important चीज़ वो है. It's not what you say, it's about how you say it, when you say it. तो एक तो बात होगी वो. तो आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत मस्ती मजाक किया है. बहुत अच्छा इक्वेशन है. नेवर है एनीबडी, कोई आया ही नहीं आज तक. इसलिए नहीं कि आई वॉज नॉट अप्रोचेबल, ऐसा हुआ ही नहीं. जो नेगेटिव फीडबैक की बात है कि यार ये शो में ना ये अच्छा हो सकता था, ये हो सकता था, वो एक क्रिटिकली मुझे भी पता है, और जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, सो फॉर एग्जांपल जो कंसोल पे खड़े हैं इवेंट मैनेजर्स उस समय, उनको पता है, वो एक टोटलिटी में शो देख रहे हैं. तो कभी कभी मैं कुछ करता हूँ और इंस्टेंट फीडबैक आ जाता है कि यार एक काम करते हैं, अगला सेशन में ये कर लेते हैं, ये थोड़ी ना बनी नहीं बात, इमीडिएटली उसको हम चेंज कर लेते चेंज कर लेते हैं. क्योंकि मुझे उनकी इतनी वैल्यू है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे काम देगा, इन टर्म्स ऑफ बिकॉज आई नो दे poured in their heart and soul into creating this event. I have just come into this event doing this part. For them, it's a baby they've been living with for past 3 months. So I really value a lot of feedback. Immediate, वो चलता है. बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने पूरे दिन का शो खत्म करने के बाद अगले दिन की तैयारी हो रही होती है, तो रात को एक नोट्स होते हैं कि यार दिस वर्क, दिस डिडंट वर्क, दिस डिडंट वर्क, आई थिंक लेट्स चेंज दैट. Oh, you do that? No, I don't do it. It's the team Feedback where that comes in. they sit, and there are occasions where somebody says कि यार I think ये कर सकते हैं. अगर वो वैल्यूबल लगता है, करने लायक है, ज़रूर हो जाता है. उसमें कोई इतना वो नहीं है कि भाई ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं. कितनी बार, एंड आई एम जस्ट लाइक आई एम ऑलवेज इन द फ्लो. समबडी सेज कि यार भाई ये वाली, अच्छा यार भाई रुक जा, बहुत ही अच्छा, ये करते हैं. सो आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट काइंड ऑफ थिंग. या Okay. On a scale of 0 to 10, how excited do you get अबाउट about anything? Like, आपको क्या लगता है? if you are a person who's like, it could be because of any reason, right? कितने excited हो जाते हो आप 0 to 10 तक? यार डिपेंड कर रहा है किसी चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज के लिए. यार नहीं, Do you have it in you to get excited, let's say 10? Do you have that kind of a मैं भाई साहब reaction to 15-20 से तो कम हो नहीं. अगर आप 0 to 10 की बात कर रहे हो, मैं हर चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ. फॉर एग्जाम्पल रात को 4 बजे चीज़ केक खाना है, आई एम सुपर एक्साइटेड. रात को 2 बजे 3 बजे ड्राइव पे चलना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. कोई मेरे को बोलेगा यार मेरे को एक ब्रिलियंट आइडिया आया है, एक काम करते हैं, ये बिजनेस शुरू करते हैं. हाँ यार तू कहाँ, मैं आता हूँ. तो आई एम एक्साइटेड अबाउट लाइफ इन जनरल. शोज यार, द फैक्ट यार इस जिंदगी में क्या नहीं है. आप देखिए, लोग हमें सुनने के लिए दुनिया भर में ट्रैवल कराते हैं, हमें सुनने के लिए. तो अपने खर्चे पे लेके गए, हमको पैसे भी दे रहे हैं,
हमें सुनने के लिए। हमने जब सुना दिया तो लोग हमें तालियां भी बजा रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। अब मैं उसमें भी क्रिप करूं, यार इससे बेहतर काम क्या हो It's the सकता है? best profession. I करेक्ट, truly feel that. यू आर बीइंग पेड टू एंजॉय योर लाइफ। और अब वो भी ढंग से नहीं करो। यार वो उसमें भी लोग, अच्छा एक ना मैंने वो देखा है मैं इंस्टाग्राम पे, बैकअप कब होगा शूट पे, फाइनली बैकअप, ये व्हाट अ लॉन्ग इवेंट, ये खत्म हो गया। एंड आई एम लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं देखता हूँ ना, एंड आई एम लाइक यार भाई यही तो करने के लिए आए थे। तो मेरे को वो जो पैकअप वर्ड है वो बड़ा अजीब लगता है। ओके, पैकअप वर्ड, थैंक यू वेरी मच, आई एम गोना सी यू टुमारो, इट्स ओके, बट इट्स नॉट अबाउट, सो आई डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट क्या चलो भाई जान छूटी। It's not the case. I'm always excited to. But on a scale of like 0 to 10, how sad can you possibly get? Is there something that brings you like totally down? You'd be like, or you have insulated yourself from, things enough now that they don't impact you as much. मैंने उदास रहता हूँ, बहुत डीप उदास रहता हूँ। फिर मैं जब मैं डीप बातों के लिए है ये हमारा नहीं नहीं पॉडकास्ट मैं जो वही बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं उदास हो जाता हूँ। और जब मैं उदास होता हूँ फिर मैं बहुत मीठा खाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, और बट अब होते हो इतने उदास? हाँ कभी कभी हो जाता कुछ हूँ। चीजें हैं जो हाँ, लाइफ कुछ में चीज़ें आपको हो जाती हैं, इतना मैं फिर उदास हो जाता हूँ। कभी किसी से लड़ाई हुई या किसी से कुछ भी हुआ तो मुझे पता है फिर मेरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। डू यू ऑल्सो क्राई? I haven't cried. The only time I was crying was recently. Was watching Lal Singh Chadha. Is beautiful. I think it's one of the most beautiful films I've seen in my life. मैंने एक्चुअली 2 बार देख ली 2 दिन में, बहुत ही खूबसूरत है। जितना मैं Wow. रोया, मैं गाने सुन के मैं फिल्म से जब वापस भी आ गया गाने सुन रहा Oh, था। you had sent me that song of Lal Singh Chadha, right? Oh yes, now I remember. Such a shame I've not seen the movie so far. बहुत ही अच्छा है यार, मतलब so I really got emotional because I think I could connect with that film. Then you asked me also गाना सुना कि नहीं? मैं तो बोला था And I'm like अभी 5 मिनट हुए, रुको मैं सुन या, रही या, हूँ। नहीं मैं बहुत साल हो गए मैं रोया नहीं यार, मैं नहीं रोया। और बड़ा हैरानी होती है। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये इस शहर ने हमें कहीं पत्थर दिल तो नहीं बना दिया। तो नहीं यार मैं नहीं मैं You know, Jiveshu, when he came to my podcast, he said that, मेरी लाइफ में मुझे कभी खुशी के आंसू नहीं आए, एंड दैट्स सच अ सैड थिंग टू से, एंड दैट स्टेटमेंट हैज स्टेड विद मी। और कभी कभी अभी भी आई थिंक अबाउट इट कि दैट्स रियली सच अ डीप एंड सैड थिंग टू थिंक ऑफ कि आपको कभी लाइफ में खुशी के आंसू ही नहीं आए, कि आप वो इमोशन एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए जो लोग किसी छोटी सी चीज़ में कर लेते हैं। मम्मी का फ़ोन आया या वो घर पे आ गई या किसी ने सरप्राइज दे दिया, तो यू क्राई इन हैप्पीनेस। नहीं, बट जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको एक्साइट करें वो किसी वो और को किसी भी और को भी करे, दैट्स व्हाट आई एम हाँ सेइंग कि आपको किसी चीज़ ने अभी तक वो छुआ ही नहीं उस तरीके से कि आपको हाँ, तो मुझे खुशी के यू आंसू नो नहीं, बट मैं वही बोल रहा हूँ, एक खुशी के आंसू होना, आंखें नम होना अलग चीज है। लाल सिंह में मैं रोया, 2-3 बार रोया, अच्छे से रोए मतलब। लाइक आंसू टपक रहे थे यार। जो लोग साथ में थे उनको पता चला कि गुंजन इज क्राइंग। हाँ हाँ, उसको लगा भाई क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, बिकॉज पीपल हैवंट सीन मी क्राई। मैं खुद भी बोलता हूँ कि मेरे को ऐसे देयर आर मोमेंट्स वेयर आई रियली गेट इमोशनल। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। वो तो पंजाबी हो ना, वेरी नहीं, आई डोंट थिंक सो इट्स पंजाबी, आई थिंक इट्स एन इंडिविजुअल थिंग। या ऑफ कोर्स। तो मैं, बट आंसू नहीं आए कि अरे यार ये हो गया। थोड़े दिन पहले बहुत रोया था, बड़ी अजीब सी बात हो गई थी घर पे, तो बहुत रोया। बट आई थिंक वो लाल सिंह का एक इफेक्ट था, तो शायद वो जोन में था मैं। बट नहीं यार, और जब मेरे बहुत करीबी भी इस दुनिया से चले गए, मैं तब भी नहीं रो पाया। इनफैक्ट मैं बड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं रो पाऊँ, मेरे को नहीं आया, मैं रोना ही नहीं आया। और मैं बैठा हुआ देखता रहा। व्हेन माय बड़ी मम्मा पास्ड अवे, आई वाज इन शॉक। I just couldn't believe it. I was sitting there watching her cremation and मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं मेरे थॉट क्या आ रहा है, आधा थॉट तो यही है कि oh I won't be able to see her again because she was really like she's my mom. और बार बार ध्यान रख, तेरे को रोना क्यों नहीं आ रहा, तेरे को रोना क्यों नहीं आ रहा? What is wrong with you? Why aren't you crying? Like, aren't you going to miss her? Aren't you going to miss her? बट दिमाग उस समय कुछ और ही जोन में था, ब्लैंक था थोड़ा सा। फिर जब वो चले गए, जब हम वहां से निकल के आए, जब तब थोड़ा सा एक इमोशनल हुआ मन।
बट उस समय भी मन में यही चल रहा था, विच इज़ वेरी वियर्ड, बट कि यार दिस इज हाउ आई नो माई बड़ी मम्मा फॉर, कि यार वो ये करते थे यार, कि यार तो मेरे को भी ऐसे बनना है. माई नाना जी, when he passed away and I was there, तो मेरे को ना उस बात का दुख नहीं हो रहा था कि वो चले गए. मेरे को सिर्फ ये याद आता रहा कि अरे यार नाना जी यार ये भी करते थे, यार ये भी करते थे, यार नाना जी ना ये भी करते थे. ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर. मेरे को याद है हम छोटे से होते थे और वो जब भी सुबह उठ के मंदिर जाते थे, मेरा लालच इतना होता था कि वो मंदिर के बाद ना, मंदिर और गुरुद्वारे के बाद प्रसाद मेरे को ले लो। नहीं नहीं चॉकलेट खिलाएंगे भाई, अच्छा। पैम्पर. तो हम तो लालची थे चॉकलेट के चक्कर में. बट अपने घर से वहां तक जाते हुए ना उनको कोई भी मिलता ना, उनकी जेब में बहुत सिक्के होते थे. तो 10 पैसे मतलब, और मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब 1-1 रुपए की भी वैल्यू बहुत होती थी. 5-5 पैसे की टॉफी आती थी, मैंने खाया वो. तो आई मैं, थिंक मैंने भी खाई है, एक हाँ रुपए की सबने खाई, 12। हाँ हाँ वो करेक्ट है. हाँ। तो यार सॉरी मिलेनियल, यू वोंट हाँ, हैव एनी ये आइडिया. बच्चे लोग को कोई आइडिया नहीं है, बट Yeah, हाँ। I'm also young. I'm just like a couple of years ago. It's inflation, bro. It's inflation in the past 3 years has bloody become so. So Yeah, high. ये तीन We are साल all पुरानी young बात है. people. So point ये था कि By the way, they've started calling us dinosaurs now. You I know have no that? idea. Maybe you are. That's the मेरी word. त्वचा से तो मेरी उम्र का पता नहीं लगता. Anyway, तो मैं लालच, बट मैंने उनको ना हमेशा ये देखा दूसरों के लिए करते हुए, वो कुछ ना कुछ देते रहते थे कि अच्छा इसको दे दिया पैसा, उसको दे दिया, इसके लिए खिला दिया, उसको खिला दिया. So I've always seen them. So I could only recall how good he was. एंड मेरे को उस समय ये होता था कि कैन आई बिकम लाइक हिम. सेम विद माई बड़ी मम्मा, कि कैन आई बिकम लाइक हर, कैन आई जस्ट इम्बाइब दिस क्वालिटी. वेरी वियर्ड एट अ क्रिमेशन, कि सब रो रहे हैं, एक मैं ही ऐसे बैठा हूँ और ताड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे देख रहा हूँ और समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है. बट थॉट यही आ रहा था. नहीं रोया यार, बड़ा अजीब है. आई होप मैं ठीक हूँ, आई होप मैं इंसान. I hope they make more movies like लाल सिंह चड्ढा, शायद वहीं पे आपका एक आउटलेट तो निकलेगा कम से कम, Yeah, नहीं? people might just troll me after this. कि अच्छा, maybe the film was that bad. That That is you why you were cried. crying. Yeah. I know it was not, it was beautiful. Gunjan, there are so many emotions that we go through day on day basis, and the things that we have talked about during the past 1 hour, all of these things contribute to us feeling less in a lot of way, or egoistic, or more in a lot of ways. तो इतने सारी ना खिचड़ी पक रही है इमोशंस की. एक दिन में मेरे पास लव भी है, फियर भी है, एंग्जाइटी भी है, नर्वसनेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सब कुछ है, और ये रोज चल रहा है मेरी लाइफ में. तो what are the top 3 tips that from your journey you'd like to give to people like us, that we could follow and maybe able to crack that emotional stability in our ground? एक होता है ना ग्राउंडिंग हो जाए लाइफ में, कि हर चीज आपको ऐसे हिलाए ना. तो उसके लिए क्या 3 tips आप देना चाहोगे फ्रॉम योर विजडम? यार मेरी इतनी है नहीं, इतना इतनी हैसियत ना इतनी अकल कि मैं ये बात बोल दूँ. बट मेरी ज़िंदगी में जो काम किया है, मैं वो सोचने की कोशिश कर रहा हूँ. 2-3 चीज़ें. आई थिंक एक क्रेडिट तो बहुत कमाल का है जो मेरे पेरेंट्स को है, जो परवरिश उन्होंने करी है. चाहे बहुत गुस्सा आता था बचपन में, बहुत लड़ते थे कि, बट अब रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मतलब बात तो सही है कि उन्होंने जो संस्कार दे के रखे हुए ना, अब वो काम आते हैं. कि आप बहुत सारी चीज़ों से हिलते नहीं हो, आपके पैर, आपका दिमाग एक जगह स्थिर है. दूसरा, मैंने इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट माय फैमिली इज बीन डूइंग. माय फाइनेंशियल status changed. I became a big celebrity. A lot of money started pouring in. A lot of fame came in. Blah, 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 blah. The world around me changed, became really shiny and glamorous. My family didn't change. Were exactly the same way. Like they didn't become stars in their own head for no rhyme and reason. We still have normal conversation in the way it happens in every household. Uh, our lifestyle didn't change. Like my mother doesn't like jewelry. She doesn't like jewelry. तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे, शौक ही नहीं था, पहले भी नहीं पहनते थे. अभी बहुत पैसे हैं तो अभी भी नहीं पहनते वो. तो उतनी सादगी है. तो वो सादगी नहीं छोड़ी, जो जैसा था वैसे ही था और वैसा ही रहा है. हमारे घर में टॉपिक एक कभी कभी हो जाता है कि तो तू कमा रहा है,
बहुत अच्छी बात है सबके। आई एम जस्ट सेइंग, कभी कॉन्वर्सेशन नहीं होती कि कौन कितने कमा रहा है, या एक्चुअली पता भी नहीं होगा शायद उनको मैं कितने कमा रहा हूँ या मैं मेरी सिस्टर कितने कमा रही है, नहीं पता होता, डिस्कशन ही नहीं है। बट तू गुची पहन सकता है, हम नहीं पहन सकते, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं गुची खरीद सकूँ। यू कैन बाय मी, आई गेट इट, बट आई डोंट वांट इट। सेकंड, मेरे को शौक भी नहीं है गुची पहनने का। तेरे को है तो तू पहन ले। वेरी सिंपल दैट वेज के वो बहुत क्लैरिटी है। तो क्योंकि वो सब सही रहा, तो मैं कहीं अगर भटकना भी हो सकता था तो वो नहीं हुआ। माई फैमिली ऑलवेज केप्ट मी ग्राउंडेड, दैट्स वन। सेकेंड, विच might just sound really cliched and stupid and very basic कि यार ऐसे थोड़ा ना होता है, but this whole act of gratitude within yourself कि दिन में जब आप फोकस इस चीज़ पे करते हो, आपका ध्यान दूसरे से हटके सिर्फ अपने पे लगता है और आपको दिखता है कि आप शहंशाह हो। यार ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है ना कि कह ही नहीं सकते आप। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी आपको एक पर्पस, कुछ भी है, मतलब वो आपको कोई भी गोल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरा गोल है वो आपका होना चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपकी लाइफ का एक पर्पस है ना, एंड इफ यू ड्रिवन टूवर्ड्स दैट पर्पस, देन ऑटोमेटिकली यू वॉन्ट बी बॉदर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। डोंट गेट बॉदर्ड। जो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक बड़ा लोग कहते हैं यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो, मेरा बहुत सिंपल है, सुनो भाई, सुनना भी नहीं है तो आप मेरी जितनी मर्जी तारीफ कर लीजिए, वो भी इस कान के अंदर नहीं जाती। क्योंकि अगर इस दिमाग को आदत लग गई कि यार आज 100 लोग तारीफ कर रहे हैं और कल ये 100 नहीं करेंगे, ये 30 करेंगे, तो फिर मुझे परेशानी होगी, या कोई मेरे को कुछ गलत बोल रहा है तो मुझे परेशानी होगी। तो वो फिल्टर ही हटा दिया वहाँ से कि ना अच्छा सुनने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, ना बुरा सुनने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं अपने पथ पे लगा हुआ हूँ और अपनी धुन में लगा हुआ हूँ। मेरे को सच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और में कि कोई क्या कर रहा है। आई एम अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, बट आई एम very excited when somebody else makes it big. I am super excited about their success and it inspires me to do something great. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसने ये गाड़ी ले ली, इसने ये कर लिया, अरे भाई सब बढ़िया। So these are 3 things which I normally do, which has helped me become who I am, and I am happy with that. There is a possibility the way I am, it could be the worst version of somebody who wants to be, right? क्या भाई साहब यही तो नहीं बनना, तो इट कुड बी। मेरे लिए 3 चीज़ें बड़ी काम करी हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, सुकून है। एंड कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, व्हिच आर एडिंग टू आवर एंग्जायटी एंड सैडनेस इन यार जनरल? वो हर एक के लिए अलग है यार, सच्ची बताऊँ हर एक के लिए बहुत अलग है। क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं यार। ईजियर सेड देन डन। एक तो ये जो डिल्यूजनल वर्ल्ड है ना सोशल मीडिया का, एक तो उससे बाहर निकलो यार। मतलब ठीक है, अच्छा है, लाइक मैं तो बहुत बार यही करता हूँ, अपना कंटेंट डाल दिया फिर मैं दूसरे का कंज्यूम ही नहीं करता। आई एम हार्डली ऑन इंस्टाग्राम। 10-15 मिनट देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा बहुत डीपली इन्वॉल्व नहीं होता। नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बट नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को जो चाहिए मैं आ जाऊँगा, जब चाहिए होगा मैं आ जाऊँगा। इट्स जैसे होता है ना कि आप सारा दिन थोड़ा ना किचन में बैठे रहते हो, सॉरी, करेक्ट। जब भूख लगेगी तो खाना ले लेंगे। सारा दिन फ्रिज खोल के बैठा रहूं, करता है कोई? नहीं, कोई नहीं करता, तो ऑफ हम क्या कोर्स। इंस्टाग्राम पे क्या सारा दिन कर रहे हैं? दैट इज बेसिकली फूड फॉर योर माइंड एंड सोल। व्हिच यू डोंट रियलाइज इट। क्या चल रहा है? ऐसे थोड़ा ना कि आप 24 घंटे खाना खाते रहते हो यार। इमेजिन इफ यू ईटिंग फूड फॉर 24 आवर्स, व्हाट विल यू बिकम? दैट इज हैपनिंग टू योर माइंड। खत्म बात। तो मैं वो नहीं करता। और क्या नहीं करता? और मैं यार, हाँ, मैं ये नहीं करता, मैं गॉसिप की जो हम बात कर रहे हैं मैं वो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। बहुतों को बहुत मजा आता है, प्लीज करते रहो, प्लीज करते रहो, जिसको जो मजा आ रहा है वो करते रहो। नहीं, सम पीपल तो फाइंड बबल बात कैसे बनाओगे अगर नहीं नहीं, बट उसमें आप कभी देखो, उसमें गॉसिप नहीं है, उसमें हमने उसमें नहीं एक है? उसमें उसमें इमेजिन जो हम वो पिच कर रहे थे ना शो, सो लोग कह रहे थे यार बिना गॉसिप के, यार बिना सेक्स लाइफ की बातें किए, बिना ऐसे मजा कैसे आएगा? मैं कहा भाई बहुत बातें होती हैं, मजा बहुत आता है, 1000 बातें हैं यार। रात को 3 बजे जब 2 दोस्त बात करते हैं ना, दुनिया के किसी भी कोने में, वो ये नहीं बात करे कि तेरी सेक्स लाइफ क्या है या तेरे पास काम क्या है। वो इन दोनों को छोड़ के ना दुनिया भर की बातें कर रहे होते हैं।
और उनको मज़ा आ रहा होता है। लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, अनजान लोगों से बातें कर रहे होते हैं, वो ये नहीं पूछ रहे होते आपकी सेक्स लाइफ क्या है या आप कितने पैसे कमाते हैं, मगर फिर भी वो 18 घंटे 30 घंटे की जो जर्नी है वो इतनी मज़ेदार बनती है क्योंकि हज़ारों कहानियाँ सुना रहे होते हैं। सो लाइफ इज़ बियॉन्ड सेक्सुअल गॉसिप। और एनी अदर गॉसिप फॉर दैट करेक्ट, मैटर। तो वो बहुत मज़े है, दूसरे की कहानी सुनो, दूसरे की ज़िंदगी में बहुत कुछ है यार सुनने के लिए। तो वो गॉसिप से मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, तो मैं नहीं करता। और क्या नहीं करता यार मैं, और पता नहीं, मैं बस ये 2 चीज़ें नहीं करता मैं। ये चीज़ें आपके लिए काम करती हैं, अच्छी हाँ, बात है, बिकॉज आई हाँ। वांट टू गिव आउट दिस मैसेज कि यू नो, और लार्जली जब मैं सवाल पूछती हूँ तो यही आता है दैट सोशल मीडिया का कंजम्पशन एक तो आई थिंक दैट्स बिन सेड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट लिसनिंग टू इट एंड उसको थोड़ा कम करें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है जब वो कंजम्पशन जिन दिनों ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मेरा ऑटोमेटिकली बॉडी में कुछ ऐसा सेंसेशन होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, एक जनरल सेंस ऑफ एंग्जाइटी चल रही है जिसका आपको पता एक नहीं चीज़ मैं है। और नहीं करता, मैं ये भी नहीं कहता कि ये मत करो। सो ये भी गलत। सो फॉर एग्जांपल, जिस लाइफ फेज में आप हैं या मैं हूँ, हो सकता है ये रियलिटी सच्चाई हमारे लिए हो, करेक्ट। जो भी सिचुएशन है वो हमारे लिए ठीक हो, बट कोई और व्यक्ति की कोई डिफरेंट रियलिटी है और उसके लिए 18 घंटे सोशल मीडिया इज द हाई विच ही गेट्स द सेम वे आई गेट ऑन स्टेज। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया कंज्यूम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। नहीं करो, करना बहुत ज़रूरी No, है no, टू I'm just स्टे। saying that do it from a perspective that if you're aware what it does to you in terms of your energy, okay, if you just become aware about that, I think they will be in a much better position to take decisions. Absolutely. Yeah. This whole thing of binge or binging over something is by itself, by definition, is something where you are losing your awareness, है ना? आप सिर्फ करे जा रहे हो, बस बिंज करे जा रहे हो, जिसके लिए एक टर्म यूज होगी आजकल। तो जब तक वो अवेयरनेस होगी, आई थिंक तब तक हम लोग वो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जब तक वो अवेयरनेस नहीं होगी तो और आई थिंक किसी को भी कम्प्लीटली जीरो कर देना इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। उसमें अवेयर होके कि आपके लिए कितना काम कर रहा है, एंड एट व्हाट पॉइंट इट स्टार्ट्स ट्रिगरिंग नेगेटिविटी इन यू, और इट स्टार्ट्स पुटिंग यू इनटू लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड एज वी से। जब वो होने लग जाता है तो शायद वो अवेयरनेस से ही पता चलता है कि मेरे साथ अच्छा ऐसा हो रहा है, तो शायद उसको तब ना करें। तो गुंजन, करो करो बहुत यार, जो मर्जी करो यार, खाओ पियो यार, मतलब रात को 4 बजे चीज के खाओ यार, मजा है, मैं बहुत मजा आता है यार। है ना। हाँ। और आप तो रात को बहुत लेट लेट तक भी जगते हो। हाउ डज इट वर्क फॉर यू? सुबह आप लेट तक सोते हो, कैसे बहुत करते हो? बहुत गलत है यार, ये मुझे बदलना है बस लाइफ है में। ना। 4 बजे सो कुछ के काम कर रहे हो उसको बदलने के लिए कि? पता नहीं यार, मैं देखो कल भी रात को मैं 5 बजे सोया, हाँ। सुबह 8 बजे उठ गया क्योंकि यहाँ पे आना था। हम्म। और ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मैं सोया नहीं सोया। हाँ, आई नॉर्मली स्लीप अराउंड 4, आई वेक अप अराउंड 8:39 इफ आई एम इन द सिटी, अदरवाइज इफ आई हैव टू ट्रैवल देन आई विल टेक द फ्लाइट एक्सेट्रा। बहुत गलत है यार, ये 4 घंटे की नींद पे ऑपरेट करना बहुत गलत है। इट्स नॉट राइट फॉर यू, इट्स नॉट राइट फॉर एनीबॉडी। आई वुड लव टू डू दैट, स्लीप मोर स्लीप मोर ऑन टाइम। बट यू नो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस गुंजन। वो भी आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि 3 की जगह 2 बजे सोने का, 2 की जगह 1 बजे सोने का, कुछ कुछ दिन करके। यार कोशिश शायद। बहुत होती है। जब मैं जैसे अभी ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में था, सो ही रहते यार। सो रहे थे हाँ। पीसफुल आराम से अरे 8-8 घंटे? 8 घंटे तो नहीं, हाँ। सुबह क्योंकि 6 बजे उठ जाता था, हम्म। बट रात को सोना 12 बजे हो रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 4 बजे की बजाय मैं 12 बजे सो रहा था। तो मतलब पॉसिबल तो है। नहीं पॉसिबल सब कुछ है यार, क्या पॉसिबल नहीं है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी इस समय मेरे को होता है कि यार मैं ये काम कर लूँ, ये चीज़ें कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। करते क्या हो आप रात रात तक जग के? यार अब ये क्या बताएं, ये जो चंपक और चाचा चौधरी की जो कहानी है ना, ये पढ़ पढ़ के ना भाई साहब। नो आई यार, बिकॉज आई रन 3 businesses, so I do a lot of things throughout the day. What are your businesses that you run? तो हम शेयर करेंगे, हाँ। बट क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ तो जिंदगी तो मैं जी रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ ना, कि स्टेज पे हैं, शूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब मैं वापस आता हूँ तो फिर वो वक्त है जो मेरे लिए है। तो कहते हैं कि 3 बजे से 5 बजे जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो मैं फिर वो ब्रह्म मुहूर्त करके ही सोता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम पे उठना नहीं, मैं उस टाइम पे सोना। हाँ। तो हमने रियलाइज किया भैया 3 बजे उठना तो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, तो सोते ही नहीं है। I think it's also to do with our lifestyle, because most of the events, they get wrapped up by 11:30, 12. By the time you go back home, आप कुछ home as in या होटल में वापस जाते हैं,
आप खाना खा रहे हैं, वो एड्रेनलिन इतना बड़ा होता है, नींद ही नहीं आती है यार। नींद नहीं मतलब आती है, जिस दिन मेरा शोज होते हैं मैं नहीं सो पाती हूँ। नहीं आई एम हो लाइक पा रहा। 3 बज गए हैं यार, क्या आई एंड आई रियली वांट टू स्लीप, ओके या आई स्लीप या ऑन टाइम ऑन द अदर डेज हुँ, एंड आई हैव बीन इन मुंबई फॉर लाइक 2 वीक्स नाउ एंड आई हैवंट स्लेप्ट before 2 o'clock 3 o'clock any of the nights. या Most of the nights I've been working or हुँ, shooting or whatever, and it's just not happening and I'm not liking it. I know my body needs हुँ, sleep, हुँ। but nahi hota like you are saying. तो क्योंकि वो लाइफ़स्टाइल ऐसा है, लाइक आई टेक ऑलमोस्ट अबाउट 5 फ्लाइट्स इन अ वीक, रह क्या गया फिर? और वो सुबह की फ्लाइट्स होती हैं कि 6 बजे की, 7 बजे की, सो टेक्निकली आपका स्लीप पैटर्न हिल जाता है। अभी ऐसे ही है, बट इट्स नॉट अ राइट थिंग, आई मीन No, but then what I don't do is that I don't pressure myself to wake up early. Then I take that liberty कि अगर मैं 3 बजे सोई हूँ तो यार मैं 10 बजे उठूंगी, मैं जज नहीं करूंगी. I want to wake up at 5 in the morning. Yes, I do wake up at 5 in the morning. I do my yoga and all of that. But I don't, contain myself in that box कि यार मेरी ये तो perfect image है कि अरे ये तो 5 बजे उठ जाती हैं, 4 बजे उठ जाती हैं. नहीं, लेकिन अगर मैं लेट सो रही हूँ तो then I'll compensate for it in मैं other एक ways. चीज़ ज़रूर कर लेता हूँ कि अगर कभी-कभी मेरा दोपहर फ्री है और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बिज़ी है, तो मैं सो जाता हूँ। इफ़ कभी वो मौका मिलता है। नहीं हुआ, बट आई हैव टू चेंज दिस, आई हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड अबाउट दिस। Gunjan, you have said so many beautiful things on this show, and I बंदा ही think ऐसा हूँ मैं, वो तो अच्छी हुई. बातें बोलने के लिए आए हैं, खराब बातें कौन बोलता है शो पे? सही बात है. नहीं, खराब बातें नहीं, बट इतनी रियलिस्टिक बातें Yeah. आपने करी है, और आई थिंक वी ऑल हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम योर जर्नी, टू पिक फ्रॉम योर इनसाइट्स. बहुत प्यारी प्यारी बातें और सिंपल बातें बहुत सिंपल शब्दों में आपने बताई. सो आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो, फॉर मेकिंग टाइम, फॉर जस्ट बीइंग अ कॉल अवे. एंड समटाइम्स तो वो कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप आगे से ही फ़ोन करके लाइफ आसान बना देते हो, क्योंकि आई गेट ऑकवर्ड, कि मैं कैसे बोलूँ यार, आधा घंटा जल्दी कर लो या ये कर लो. बट यू आर जस्ट अमेजिंग, जस्ट से वाइब द देख रहे हो मेरी? वे. वाइब देख रहे हो? कितना चिल्ड आउट लौंडा हूँ मैं। Yeah, no, but I know, yeah. right? Hmm. And I was like, Gunjan is coming, what should I wear and whatever. And I see him coming like this, and फिर I'm मैंने like, देखा hello. ये क्या ही पहन के आएगा, भंगी बन के आएगा, तो मैं कुछ भी पहन लूँ तो मैं अच्छी दिखूंगी। Yeah, Come on. no, नहीं, yeah, लेकिन but really thanks a lot for coming, for my agreeing pleasure. to do this. And I really wish you the best with all that you decide to do in your life, because you truly deserve the best and nothing else. Thank you very much, and I wish you the very best. और मुझे खुशी इस बात की है, जहाँ से हमने शुरू की थी ये बात, कि I'm glad कि ये जो है ये शुरू हो गया है, and I just hope that this takes you in the direction where you always wanted to be. It takes you to the destination. Bye.